Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today we will discuss about what is the different objectives of management. So there are three types of management, or three major objectives of management are: first is organizational objective, second is social objective, and third is personal objective, right? So let's see about what is organizational objective. So it means to achieve a company's goals, management is responsible for setting and achieving objectives for the organizations. The main objectives of business is to earn maximum profit by optimum utilization of available resources. Rather than maximum profit and growth and development of a business, economic development, expansion and survival in a market is also some essential objectives of an ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट करने का मतलब होता है कि गोल्स को अचीव किया जा सके। जो भी कंपनी अपने स्पेसिफिक गोल्स को सेट करके रखती है उसको अचीव किया जा सके, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके बाय मेंटेनिंग क्वालिटी एंड यूटिलाइजेशन हो सके अच्छे से अवेलेबल रिसोर्सेज का। और सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं मेन ऑब्जेक्टिव है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक्सपेंशन फॉर अ बिजनेस, सर्वाइवल इन अ मार्केट इज ऑल्सो some essential factors or objectives which is essential. So let's move forward. Next topic is second objective of management is social objective. So this is responsibility of every business to provide a social benefits, because business is established in a society and it also survives in a market because of society only. So organization gives better quality products at a reasonable price at a regular basis or regular interval. It also creates employment opportunities and improve countries इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका मतलब ये हुआ कि बिज़नेस का मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं होता है, ग्रोथ ही नहीं होता है, बल्कि बिज़नेस जो है वो सरवाइव कर पाता है मार्केट में। बिज़नेस जो है वो इस्टेब्लिश हो पाती है बिकॉज ऑफ सोसाइटी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एवरी बिजनेस की कि वो सोसाइटी को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, बेटर एट अ रेगुलर इंटरवल, जो बेसिक नीड्स है उसको एट अ रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे एंड कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प करे। Now, third objective of management is a personal objective. It means it is responsibility of business to provide a fair wages salary to their employee to meet their daily requirements. Firm should also provide better working conditions, skill enhancement chances, better opportunities for personal development by providing a training. इट मीन्स ये एवरी बिज़नेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो एवरी एम्प्लॉइज़ को, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड लेबर हो, एम्प्लॉई हो, उनको फेयर वेजेस मिले अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन, उनको फेयर सैलरी मिले सो डैट दे कैन एटलीस्ट मीट देयर डेली रिक्वायरमेंट्स। एंड फॉर्म को जो है वो वर्किंग कंडीशन बेटर प्रोवाइड करना चाहिए सो डैट उनको स्किल इन्हेंसमेंट मिल सके, चांसेस मतलब बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके अपने आप को डेवलप करने का, स्किल को इन्हेंस करने का, एंड पर्सनल डेवलपमेंट भी हो सके उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। इट्स ऑल्सो दी मोटिव ऑफ, इट्स ऑल्सो दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस. Now the second topic, which is what is the importance of management, why it is necessary to do management. So let's see. First importance of management, why it is necessary to do management is it increase efficiency. Aim of manager is to reduce cost and increase productivity through better planning, organizing, directing, staffing and controlling the activities of the organization. तो हर एक मैनेजर का एम होता है मैनेज करके चलना सारे रिसोर्सेज को, एंड रिड्यूस कॉस्ट को रिड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना बाय मेंटेनिंग ऑल्सो क्वालिटी,
ऑफ अ प्रोडक्ट एंड बेटर प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग डायरेक्टिंग के थ्रू सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से करना. सो इट विल इंक्रीज इफ़िशियंसी. Now second importance of management is it helps in achieving a group goals. Management is not only helps to achieve individual goals, but it is the thing to achieve a group goals. Management is required not for itself but for achieving the group goals of the organization. Now third importance of management is to create a dynamic organization. Dynamic organization means business environment is a dynamic in nature. We all know that every time business environment is constantly changing, and management helps people adapt to these changes so that the organization is able to maintain its competitive edge. तो मैनेजमेंट जो है वो हेल्प करता है लोगों को उस चेंजेस को अडॉप्ट करने में, सो डैट कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स जो है वो अचीव हो सके टू मेंटेन इट्स कम्पिटिटिव एज. Now fourth importance of management is it helps in achieving a personal objective. So a manager motivates and leads his team in such a manner that the individual member are able to achieve personal goals while contributing to the overall organizational objective. So management जो मैनेजर जो है वो मोटिवेट करती है अपने टीम को एंड लीड करती है इस तरीके से कि मैं इंडिविजुअल जो है उनका इन्हेंसमेंट हो सके, डेवलपमेंट हो सके, उनका स्किल जो है इन्हेंस हो सके, सो डैट कि इससे जो है वो कंपनी को भी फ़ायदा होती है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल का भी गोल्स को अचीव करा जा सकता है. नाउ फिफ्थ importance of management is it helps in the development of the society. Management helps in the development of the organization and through that it helps in the development of the society. तो मैनेजमेंट जो है वो ना सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होती है, एम्प्लॉयज़ को स्किल इन्हेंसमेंट कराती है, बल्कि सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है. एंड सोसाइटी डेवलप करती है तो ओवरऑल हमारा कंट्री भी जो है वो डेवलप करता है थ्रू बिजनेस एंड मैनेजमेंट. नाउ लेट्स मूव forward to the topic management is compared with art. So let's see. First is existence of theoretical knowledge. So management is based on the theoretical knowledge and art is also a body of the theoretical knowledge. That means these features can be easily matched with management and art. Creativity and practice. So management is also based on creativity and practice. If अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा स्किल, उतना ही हमारा एक्सपीरियंस जो है वो होता जाएगा और हमारा जो है मैनेजमेंट क्वालिटी और भी बढ़ेगा, इफ़िशियंसी जो है वो आएगी. सो इट ब्रिंग्स इफ़िशियंसी एंड स्पेशलाइजेशन टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. Now third characteristic is personalized application. Knowledge and experiment of this is varies from individual to individual. तो मैनेजमेंट में और आर्ट में एक ये भी सिमिलरिटी है कि नॉलेज हो हर एक इंडिविजुअल का एंड एक्सपीरियंस जो है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो है वो डिफरेंट होती है. सो वी कैन से डैट मैनेजमेंट इज़ अ प्योर और फुल फ्लेज एंड आर्ट. तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है प्योर आर्ट है अगर हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट को आर्ट से. तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विच इज़ मैनेजमेंट एज अ साइंस. सो अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या साइंस है, फुल फ्लेज साइंस है या नहीं. तो यस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस इज सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. So science is a systematized body of knowledge and its principles are based on cause and effect relationship. Means
साइंस जो है वो सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है एंड इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बेस्ड पे होता है। लाइकवाइज मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। उसी तरीके से मैनेजमेंट भी उसका अपना बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो कि हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो है वो दिया है। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। इट हैज़ इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स, बट इसका अपना एक थ्योरी एंड प्रिंसिपल होता है जो कि डेवलप्ड हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ऑन द बेस्ड ऑफ एक्सपीरियंस of many theorists. Now second characteristic of management is second characteristic of science is a principle based on experiment. So scientific principles are first developed through observation and then tested through repeated experimentation under controlled condition. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जो है वो डेवलप्ड होती है, इस तरीके से ऑब्जर्व होती है कि जितने बार हम उस पर्टिकुलर टास्क को करेंगे तो वो रिपीट होगा एंड जो रिज़ल्ट है वो हमें रिपीटली वही मिलेगा. बट मैनेजमेंट हैव इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन अ रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन इन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट मैनेजमेंट में क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, वो डिफरेंट होती है. तो सिंस मैनेजमेंट डील विद द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन बींग्स है, एक तरीके से ह्यूमन बिहेवियरल है, the outcomes of these experiments are not capable of being accurately predicted or replicated. तो जो भी मैनेजमेंट होती है हो सकता है कि हम वही पॉलिसीज़ को अपनाए, किसी भी कोई भी बिज़नेस जो है वो सिमिलर पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज़ को अपना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर बार एक ही रिजल्ट को देगा. डैट मीन्स कि जब हम साइंस में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो उसका रिजल्ट्स हर बार सेम आता है, रिपीटेड सॉल्यूशन आता है. बट हम मैनेजमेंट में एक ही पॉलिसीज़ को बार बार करते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिजल्ट है वो सेम आए. ओके, now third characteristic of science is universal validity. So scientific principle have universal validity and application. साइंटिफिक, अगर हम लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, राइट. तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में H2O का मतलब वाटर होता है और अमेरिका में इसका फॉर्मूला बदल जाता है. तो हम बोल सकते हैं कि साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है एंड एप्लीकेशंस है. बट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसा नहीं होता है, आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ साइंस. देयर एप्लीकेशन एंड यूज़ इन नॉट यूनिवर्सल. तो इसका यूज़ और इसका जो एप्लीकेशंस है वो यूनिवर्सल नहीं होती है, ये डिफ़र करती है सिचुएशन टू सिचुएशन, बिजनेस टू बिजनेस एंड different countries to different countries and their situations. They have to be modified according to a given situation. तो मैनेजमेंट को मैनेजमेंट इज़ नॉट अ rigid in nature, so management can be modified easily according to the situation. So we can say that management is in exact science, मतलब means मैनेजमेंट साइंस का जो भी जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरी तरीके से मैनेजमेंट से मैच नहीं खाती है. दैट्स वाई मैनेजमेंट इज़ इन एग्जैक्ट साइंस. नाउ बी कंपेयर्ड management as a profession. So first characteristic of profession is it is a build defined body of knowledge. All professions are based on a build defined body of knowledge that can be acquired through instruction. Since management has also a well defined body of knowledge, so कोई भी प्रोफेशंस होती है उसका एक इंस्टीट्यूशन होती है जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है. बट मैनेजमेंट भी जो है उसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, जैसे AIIMS हो गया, राइट. So second is restricted entry. The entry to a profession is restricted through an examination or through acquiring an educational degree. अब प्रोफेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होती है जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाती है, जो डिग्री प्रोवाइड करती है.
but there is a restriction, but there is no restriction on anyone being designated or appointed as a manager. लेकिन मैनेजमेंट में मैनेजर बनने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, बस एक्सपीरियंस एंड स्किल होना चाहिए. Now let's move forward, which is professional associations. So all professions are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulate and enforces a code of conduct. There are several associations of practicing managers in India, like the AIMA, All India Management Association, that lead to the conduct activities of their members. However, there is no compulsion for a manager to be the member of the such association. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी प्रोफेशन जैसे सीए मुझे बनना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल. सो सीए बनने के लिए क्या करना होता है कि ICAI से रजिस्टर करवानी होती है. उसके बाद एग्जामिनेशन, बहुत सारे एग्जामिनेशन को क्लियर करके जो है वो हमें डिग्री मिलती है. तब जो है वो हम उस प्रोफेशन के एसोसिएशन के हिस्से माने जाते हैं. बट मैनेजर बनने के लिए ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है कि कोई भी एसोसिएशन के मेंबर होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए. बट येस, अगर किसी का चॉइस है कि वो एसोसिएशन का मेंबर बने तो येस दे कैन अप्लाई, दे कैन बी अ मेंबर ऑफ AIMA, विच इज़ an example. But there are lots of several associations which are conduct activities of a manager, right? Fourth is ethical code of conduct. All professions are bound by a code of conduct which guide the behavior of its member, but management is to help the organization achieve its stated goals. हर एक प्रोफेशन जो है वो कोई ना कोई कोड ऑफ कंडक्ट से बाउंडेड होती है. कोई इंस्टीट्यूशन होती है, जैसे सीए को कंडक्ट कराने के लिए ICAI जो है वो कोड है, जिससे कि हर एक स्टूडेंट को उसका पार्ट बनना होता है, उसका एसोसिएशन का हिस्सा बनना होता है. बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. मैंने अगर स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, तो एनीवन कैन बी अ मैनेजर. तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज़ नॉट अ प्रोफेशन. मैनेजमेंट अभी रिसेंटली प्रोफेशन नहीं माना गया है, बट इन फ्यूचर इट मे बी कंसिडर्ड एज अ प्रोफेशन. लेकिन फ्यूचर में मैनेजमेंट को प्रोफेशन कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ है जो मैनेजमेंट को प्रोफेशन जो है वो मानते हैं, एंड वहाँ के मैनेजर जो है वो एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हैं. So thanks to watching my video. If you like this video, then subscribe and comment. If you have any doubt, please write in the comment section, and thank you so much.